Hello guys, we were doing complex numbers. In the previous lecture we have done how to represent the complex number, Cartesian form of complex number, algebraic properties of complex number. Then after representation of complex number on complex plane, distance of any point from origin, and we are calling it as modulus. Already we have done these topic, modulus, inequalities, that all we have done. Now today we will start from here, argument and conjugate. What do you mean by argument? By the argument we mean that angle. Suppose here we are having, this is the real axis and this is the imaginary axis, and here is one point P. Here argument means angle of any point with real line, right? That is called argument, right? For the argument we are having the formula, that is tan theta is equal to imaginary part of z we are taking as x plus iota y, right? Tan theta is equal to y, imaginary part of z upon real part of z, right? Then argument, one more thing, always argument lies between 0 to 2 pi. This is the range for the argument, it lies between 0 to 2 pi. And now we will discuss about the principal arguments. You may have seen some questions in which they are asking you about the principal argument. Argument lies between 0 to 2 pi, and principal argument that lies between minus pi to pi. This is the interval for the principal argument. Let's read that. Argument depends on the quadrant in which it lies, right? Argument ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है. इन द प्लेस ऑफ टेकिंग लॉन्ग रूट फॉर द टेकिंग आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग इन द थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, वी कैन गो also in clockwise directions, right? We will follow the directions. If the clockwise angle is used for it will be negative or and also different from argument. This is known as principal argument. ठीक है. अब देखो इसमें आपने कैसे करना है. इसमें आप हमारे पास देखो, इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, right? This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. We are having 4 quadrants in this. Any principal argument in first quadrant, that we are representing by theta. Principal argument in second quadrant, that is pi minus theta, right? Principal argument in third quadrant, that is negative of this, that is minus of pi plus theta. And principal argument in this fourth quadrant, that is negative of theta, that is minus of theta. In this way we are writing the principal arguments. Now there are some steps to find out the argument. How to find out the argument? For that, as I told you, tan theta is equal to, for the argument we are saying that tan theta is equal to imaginary part divided by real part, राइट? मैंने आपसे यही डिस्कस किया था कि ये ऐसे आता है, अगर हम थीटा ले लें तो टैन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा. इट मीन्स इट विल बिकम थीटा इज इक्वल टू टैन इन्वर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, राइट? नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट. तो फिर उसके बाद अगर हमने आइडेंटिफाई करना तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फॉर दैट यू विल चेक दैट कि एक्स कौन सा है, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है? एक्स क्या है? एक्स क्या है? आर कोस थीटा, आर साइन थीटा. एंड देन मॉडुलस आर इज इक्वल टू, और आर क्या होता है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड. Then after third step is write the final argument as per the chart. चार्ट कैसा था हमारे पास? पहले हमने एंगल फाइंड आउट कर दिया, फिर हमने यहाँ से देखा z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ओइटा वाई से हमने चेक किया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर है. ये कहाँ से पता चलेगा हमें? अगर x और y दोनों पॉजिटिव है, इट मीन्स द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? अगर हमारे पास x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, it means that is second quadrant. If both are negative, it means third quadrant. If x is positive and y is negative, it means fourth quadrant, right? यहाँ से हम फाइनल आर्गूमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि थीटा है, पाई माइनस थीटा है, या फिर
माइनस पाई प्लस थीटा है या फिर माइनस थीटा है। ठीक है, तो देखो इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इज़ फाइंड आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस ओइटा। 1 प्लस ओइटा का देखो आर्गूमेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सी बात, एज आई टोल्ड यू tan थीटा इज इक्वल टू imaginary part, that is 1 upon 1. So theta is equal to tan inverse of 1. So from tan inverse of 1, so theta is equal to 45 of degree, right? Now next question is find the argument for minus 1 and minus oita. Now how to find out the argument for that? Again theta is equal to pi by 4. नाउ फॉर द प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स पॉइंट और वाई वाला पॉइंट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया था, दोनों पॉजिटिव। सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? हियर इट इज़। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थीटा हमारे पास आया था पाई बाय 4। ठीक, अब दोनों नेगेटिव है, इट मीन्स पाई माइनस थीटा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। हियर फाइंड पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4. जस्ट सॉल्व दैट, right? And you will get minus 3 by 4. This is the value of principal argument. Now there are some properties for the principal argument. Principal argument के लिए भी, आगे argument के लिए भी properties होती हैं। argument के लिए सेम वही properties हम follow करते हैं जैसे हम log के लिए follow करते हैं। ठीक है, जैसे हम log के लिए कहते हैं, log में अगर हमारे पास कैसे होता था, फर्स्ट टर्म क्या होती थी log में, अगर हमारे पास m n तो हम क्या लिख लेते थे, log m प्लस log n, ऐसे लिखते थे ना इसको हम। सेम वे से आर्गूमेंट में अप्लाई करना है हमने। आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस z2। अगर सेम वे में लॉग में होता था हमारे पास, लॉग m अपॉन n को क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखते थे, लॉग m माइनस लॉग n, ऐसे लिखते थे। सेम यहाँ पे क्या है, आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2। देन आफ्टर आर्गूमेंट z बार किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ आर्गूमेंट z, और आर्गूमेंट z की पावर m, तो लॉग की तरह ही m ने आगे जंप करके आ जाना है बिल्कुल आगे। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द आर्गूमेंट। हियर इज़ वन क्वेश्चन, फाइंड द आर्गूमेंट 1 प्लस ओइटा रेज टू पावर 10। तो आर्गूमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पावर वाली टर्म है तो हमारे पास पावर ने जंप करके आगे आ जाना, तो 10 हमारे पास आगे आ गया। आर्गूमेंट ऑफ हमने इसका फाइंड आउट करते हैं, तो इसका आर्गूमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 प्लस ओइटा। 1 प्लस ओइटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 1, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसको हम क्या कहते होते हैं रेडियंट फॉर्म में, पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 आ गया। तो उसको हमने, क्योंकि 10 तो हमने पहली बार किया होता है, 10 को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई किया, फ्रॉम हेयर वी गेट 5 पाई बाय 2, राइट। देन आफ्टर 5 बाई 2 से हमने देखा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके लिए हमारे पास आया, हमने 2 पाई में से इसको माइनस कर दिया। जब हमने 2 पाई में से माइनस किया तो हमारे पास आ गया पाई बाय 2। नाउ नेक्स्ट इज कंजुगेट। अब है कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट मतलब हमारे पास z होता है, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बट विल बी द कंजुगेट। कंजुगेट क्या होगा, जहाँ जहाँ पे ऑइट है उसका साइन चेंज कर देना। हमारे यहाँ पे ऑइट है, इमेजिनरी पार्ट को हमने साइन चेंज करना है, जिसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना। हियर इट इज़ पॉजिटिव, तो इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, रिप्लेस ऑइटा, ओनली द थिंग इज रिप्लेस ऑइटा बाय, किससे रिप्लेस करना है इसको, माइनस ऑफ ऑइटा से। ठीक है, देन आफ्टर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल। ये देखो इसका प्रूफ कहाँ से आता है, हमारे पास z होता है हमारे पास x प्लस ऑइटा y। z बार मैंने आपको क्या बोला है कि इसका जहाँ भी ऑइटा है उसका साइन हमने जस्ट चेंज कर देना, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दोनों को हमने ऐड करना है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल, ये आ गया 2x विच इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, ऐसे ही हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है x प्लस ऑइटा वाई एंड x माइनस ऑइटा वाई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको दोनों को माइनस करना है, माइनस प्लस हेयर, अब रियल पार्ट कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 ऑइटा वाई विच इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट।
सेम वे से हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर z z बार हो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक, और इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को, इसी को हम लिख सकते हैं z मॉड का होल स्क्वेयर, राइट, मॉडलस का होल स्क्वेयर, क्योंकि मॉडलस हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मॉडलस क्या होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, अगर इसका मैं स्क्वेयर कर दूंगी तो ये कैंसिल आउट होकर सेम टर्म बन रही है, राइट। तो यहाँ से हमने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह पे ये यूज़ होता है। जेड बार इज इक्वल टू जेड बार इज इक्वल टू जेड मॉड स्क्वेयर, ये रिज़ल्ट बहुत जगह पे यूज़ होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट इज़ फोर्थ इज़, इसमें देखो क्या करना है हमने, z इज़ इक्वल टू जेड बार, अगर z बार की इक्वल है तो z इज़ रियल। कैसे करेंगे हम, देखो हमारे पास है x प्लस ओएटा वाई, हमने बोला कि ये इसके इक्वल है x माइनस ओएटा वाई के, इक्वालिटी है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ओएटा एक साइड पे आ गया, 2 ओएटा वाई इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट है जो वो 0 है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ वो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा था, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 इट मीन्स z क्या होगा हमारे पास रियल। इन द सेम वे अगर z इज़ इक्वल टू माइनस जेड बार है तो हमारे पास z क्या आ जाएगा प्योरली इमेजिनरी। अब देखो ये कैसे करेंगे हम, x प्लस ओएटा वाई इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ओएटा वाई। अब इस बार हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो रहा है, राइट, इसमें 2x, x को हम दूसरी साइड पे लेके गए तो 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट तो 0 हो गया, अगर रियल पार्ट 0 है तो क्या हो गया z इज़ प्योरली इमेजिनरी। ऐसे ही है z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट, अगर ऐसे है ये कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं तो इसने क्या करना है दोनों को सेपरेट कर देना है। सेम अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी दोनों ने सेपरेट हो जाना है। ठीक है, अगर हमारे पास डिवीज़न का केस है तो डिवीज़न के केस में भी सेपरेट हो जाना है, बट डिवीज़न के केस के लिए हम एक कंडीशन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, अगर हमारे पास z कंजुगेट का होल कंजुगेट फिर से हम करते तो हमारे पास क्या आएगा, कंजुगेट का कंजुगेट z कैसे, x प्लस ओएटा वाई, इसका कंजुगेट क्या होगा x माइनस ओएटा वाई, और इसका अगर मैं दोबारा से कंजुगेट कर दूँ तो क्या आ जाएगा x प्लस ओएटा वाई विच इज़ इक्वल टू z। सो यही चीज़ मैंने डिस्कस किया, z बार का z बार की बार दैट इज़ इक्वल टू z, ये इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो भी सेम कंसेप्ट, दोनों ने अलग अलग हो जाना है। ठीक, देन आफ्टर z बार मॉडलस दैट इज़ इक्वल टू मॉडलस, तो चाहे आप कंजुगेट का करो चाहे आप सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का करो दैट इज़ ऑलवेज सेम। इसके लिए हम देख सकते हैं लाइक z हमारे पास ये है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका मॉडलस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, राइट। अगर सेम वे इसके कंजुगेट का मैं मॉडलस लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो सेम ही है दोनों, z का कंजुगेट दैट इज़ इक्वल टू z मॉडलस कंजुगेट। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज़ इसकी देखो हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने सिंपल सी बात है, z हमारे पास होता है x प्लस ओएटा वाई, पोलर के लिए हमने r थीटा फॉर्म में लेके आना होता है इसको। ठीक है, जिसमें r क्या हमारे पास मॉडलस एंड थीटा इज़ एम्पलीट्यूड, x इज़ इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज़ इक्वल टू r साइन थीटा, r इज़ मॉडलस हियर। ठीक है, तो यहाँ से r इज़ इक्वल टू हमारे पास है z मॉड। ठीक, then after let's move to next slide, write the polar form। next question is write the polar form। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास z इज़ इक्वल टू 3 माइनस अंडर 3 ओएटा, इसकी हमने पोलर फॉर्म निकालनी है। पोलर फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें मॉडलस चाहिए, मीन्स हमें r चाहिए। r कैसे निकलेगा, 3 स्क्वायर प्लस अंडर 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, यहाँ से हमारे पास आ गया 12 विच इज़ इक्वल टू 2 अंडर 3। ठीक, इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट, उसके बाद हमें क्या चाहिए tan थीटा। tan थीटा के लिए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y
coefficient of y upon coefficient of x, minus under root 3 upon 3. From here we will get minus of 1 upon under root 3, which will lie in, which is equal to minus of pi by 6. तो पोलर फॉर्म में सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए z इज इक्वल टू आर कोस थीटा, आर कॉस हमारे पास एंगल कितना आया था माइनस पाई बाय 6 प्लस साइन माइनस पाई बाय 6, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इसी को अगर हमने यूलर फॉर्म में लिखना तो कैसे हो जाएगा, आर ई ऑयटा थीटा. ठीक, ऑयटा थीटा का अगर हम मॉडुलस लेते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा 1 के इक्वल होता है. क्यों 1 के इक्वल होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू ऑलवेज 1. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यूलर फॉर्म ऑफ ऑयटा, ऑयटा की यूलर फॉर्म क्या हो जाएगी, कोस पाई बाय 2 प्लस ऑयटा साइन पाई बाय 2. ये कैसे बनी, अब देखो पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस ऑयटा साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो यहाँ से आ गई ऑयटा. ठीक, ये इसकी होगी पोलर फॉर्म. यूलर फॉर्म ऑफ 2 की क्या हो जाएगी, 2 ई ऑयटा 0. कैसे, देखो इसमें क्या है 2 कॉस 0 प्लस ऑयटा साइन 0, साइन 0 0, सो ये 0 हो गया, ये पार्ट हमारे पास 2 हो गया. इन द सेम वे यूलर फॉर्म फॉर 1/3 ऑयटा क्या बन जाएगी हमारे पास, 2 ई ऑयटा पाई बाय 3. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑयटा पाई बाय 3 कैसे आया, हमारे पास एंगल बन रहा था tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. ठीक, और अगर हमने इसका पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो देन इट विल बी कॉस पाई बाय 3 प्लस ऑयटा साइन पाई बाय 3. In this way you can do all the questions related to this. Please like, share and subscribe my channel if you are finding it interesting.